Magmanasi, ang mga nagdating kami na enten ba? Oy, pasaglamat sa etno, ang udanabas ni Shim ni Siro na Shim snark ni Dasta Hobbit, ideas na kahobot Agazam kaupetsulo, ang unagil kami na ewit na klamat sa kornag na troshil plaon kemma, at atas na siyem ni Kala ni Siem. Ay, hego na rora, abot na simot padro. Hige data may mutlok ni Shim na pinuharap mat. Ay, rab! Hey, tigakin na bumi, gilibrak ni Iksi. Ngatakin na kala Siem, nahiligin na kasim na trabaylo. Hohit na salas ni sa esi, hohit na sa karak esi mutalat si, hohit, hegis. Yuguit logot nung, kalas na sa ripok, isa kinapihas sa akin na kirpo esi mutilhek, aga gumara kayot na sa. Uhat na kalas na si Bebe, lama ko na hira. Hat kalas na tama, lekes dumigo hatan lekes na mutakek dusaro ko isek. Tazawai kuram najik labit tali tazawai kunas ne welsi. Tajik kesi se duram naj zawai ni goikra. Tale lobma ye senagal la kip se mumik ni. Se ki lobma ye karai ye him sa masidim likin. Tasala se sidramin pasuro. Tase nashas ne sukai sa mitsek ni shemre pro. Tasanalat mesik hai to hanagale mesik su ayen samo ko zishdi sajdi me doshni ke hai to he yan dak sabe ma. Trokis vai hetleks sa mesik hai teds nashas ni gamid. Hey dolor na des gamid ni robi kulam nas no nas ni. Siyempre paplamina iyos do tabik sulo. Kaya lumiliki na lusukay sa masiyo ka masaya susretlikin sa ziyan ko. Etit namin tabik isiklat na blab. Kakada akilay ka ko rin na bimsa kay siyempre deepness ni. Gusto ro kaya nasnem ni okay ka masaya susretlik ni siyempre paplamina Tera ko kilib niya at himot dutas ka. Ano ay ko ba? Nada ganap siya. Ay, ba't na rin hihabay na sineme hatman? Tayo na naman sila kasay nung bibin mo mira sila. Ay, bro, salok ka daw rakan mo ni. Hera sangat mut. Sertik. Nakay mangga nagmut sila. Nakatapos sertik. Ay, yes, no, uhat na sa kilpotlok na mo sa din naghanap sa laon. Gusto kayo mo sertik na. Tatas ng kibra ulit gusto kilpo, ma'am. Sila siya sa himot pa. Haydrak para kasamahan mo tabi si. Siya masisya sa siya, mamot. Atan mo sa susutan. Lama ko day. Kanan ke hirap dinadamdamay namin. Hindi mo tira. Uharayot na kami namutan. Kamunan mo. Wala. Mas mutan. Agero yan ano ba so dila hindi kinahiki ito to. Ngudrakar ibo kraksiyam. मैं इस घर को भी उड़ाकर राख कर दूंगा। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। अरे तुम्हें कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी कि ये एक नाटक है। ये तो कमाल है। मैं तो इसे सच समझा था। तुम हमेशा इसे सच्ची समझते हो। तीसरी बार तुमने हमारा सेट खराब कर दिया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वो प्ले कुछ देर और देखना चाहता था। अगर तुम प्ले से मुझे कुछ डॉल्स बनाकर दे दे तो मैं खुद का प्ले कर सकता हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है। इस प्ले को बताता हूँ। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहाँ जा रहे हो?
बॉडी दिमाग से कंट्रोल होती है। दिमाग इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे मसल्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। हमें बस करना ये होता है कि इन छोटे बीज जैसी चीजों को मसल्स में या उस हिस्से में लगाना होता है जिसे हम चलाना चाहते हैं, और फिर मशीन के इस्तेमाल से आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बोलती कैसे है। इनके मुंह में स्पीकर लगाने से ये बोलने लगते हैं, और क्योंकि इनकी आवाज जानवरों जैसी सेट की जाती है इसलिए वो इंसानों की आवाज नहीं लगती बल्कि जानवरों की आवाज लगती है। कैसे हो कोरोसुके, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो कमाल है, मैं भी इसे चलाकर देखता हूँ। ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। पहले तुम इसे ऑपरेट करने का सही तरीका सीखो, फिर इसे चलाओ। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, देखो इस तरह तुम इसे खड़ा कर सकते हो, इसे ऐसे चला सकते हो, और ये बटन पीछे करने के लिए है। मैं चलाकर दिखाता हूँ। इस स्क्रीन पर बिल्ली की मूवमेंट दिखाई देती है। बढ़िया, काम पूरा होने पर मशीन खुद तुम्हें बता देगी, और जब तुम इसे दोबारा ऑर्डर दोगे, मैं इसी तरह की इन्वेंशन चाहता था। अब मैं डॉल प्ले छोड़कर जानवरों का इस्तेमाल करते हुए एनिमल प्ले करूंगा, और उसमें बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं बहुत सारी ट्रांसमिशन और रिसीविंग मशीन बना दूंगा, तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं एक नया एनिमल थिएटर बनाऊंगा, जिसका नाम होगा कोरोसुके। मैं इस घर को भी उड़ा कर राख कर दूंगा। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे तुम्हें कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी कि ये एक नाटक है। ये तो कमाल है, मैं तो इसे सच समझा था। तुम हमेशा इसे सच ही समझते हो। तीसरी बार तुमने हमारा सेट खराब कर दिया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वो प्ले कुछ देर और देखना चाहता था। अगर कितरेक से मुझे कुछ डॉल्स बनाकर दे दे तो मैं खुद का प्ले कर सकता हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है। कितरेक को बताता हूँ। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कितरेक, तुम कहाँ जा रहे हो? हेलो, हे तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे सॉरी, मॉम ने भी मुझे ऐसा करने से मना किया था। लगता है मैंने इसे ज्यादा ही हैरान कर दिया। जरा इस पर नजर डालो। अब देखो क्या होता है। अच्छा, तो तुम इस तरह इस बिल्ली को चला रहे थे। ये एनिमल पपेट मशीन कित्रेत्सु साइसामा की एक और इन्वेंशन है कोरोसुके। एंशिएंट पीरियड में थिएटर्स में बंदरों का खेल दिखाया जाता था, पर बंदर किसी की बात नहीं मानते थे। ऑर्गेनाइजर्स ने कित्रेत्सु साइसामा को इस समस्या को सुलझाने के लिए बुलाया, और उसके बाद खोज हुई एनिमल पपेट मशीन की। इंसानों और जानवरों की बॉडी दिमाग से कंट्रोल होती है। दिमाग इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे मसल्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। हमें बस करना ये होता है कि इन छोटे बीज जैसी चीजों को मसल्स में या उस हिस्से में लगाना होता है जिसे हम चलाना चाहते हैं, और फिर मशीन के इस्तेमाल से आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बोलती कैसे है।
मुंह में स्पीकर लगाने से ये बोलने लगते हैं और क्योंकि इनकी आवाज जानवरों जैसी सेट की जाती है इसलिए वो इंसानों की आवाज नहीं लगती बल्कि जानवरों की ही आवाज लगती है। कैसे हो कोरोसुके, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो कमाल है, मैं भी इसे चलाकर देखता हूँ। ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। पहले तुम इसे ऑपरेट करने का सही तरीका सीखो फिर इसे चलाओ। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, देखो इस तरह तुम इसे खड़ा कर सकते हो, इसे ऐसे चला सकते हो और ये बटन पीछे करने के लिए है। मैं चलाकर दिखाता हूँ। इस स्क्रीन पर बिल्ली की मूवमेंट दिखाई देती है। काम पूरा होने पर मशीन खुद तुम्हें बता देगी और जब तुम इसे दोबारा ऑर्डर दोगे। मैं इसी तरह की इन्वेंशन चाहता था। अब मैं डॉल प्ले छोड़कर जानवरों का इस्तेमाल करते हुए एनिमल प्ले करूंगा और उसमें बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं बहुत सारी ट्रांसमिशन और रिसीविंग मशीन्स बना दूंगा, तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं एक नया एनिमल थिएटर बनाऊंगा जिसका नाम होगा कोरोसुके। मैं इस घर को भी उड़ाकर राख कर दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये घर ईंटों से बना है, ये नहीं उड़ेगा। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। रुक जाओ। अरे तुम्हें कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी कि ये एक नाटक है। ये तो कमाल है, मैं तो इसे सच समझा था। तुम हमेशा इसे सच ही समझते हो। तीसरी बार तुमने हमारा सेट खराब कर दिया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वो प्ले कुछ देर और देखना चाहता था। अगर कित्रेत्सु मुझे कुछ डॉल्स बनाकर दे दे तो मैं खुद का प्ले कर सकता हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है। कित्रेत्सु को बताता हूँ। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कित्रेत्सु, कित्रेत्सु, तुम कहाँ जा रहे हो? हे, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे सॉरी, मॉम ने भी मुझे ऐसा करने से मना किया था। अरे ये बिल्ली तो बोल रही है। लगता है मैंने इसे ज्यादा ही हैरान कर दिया। जरा इस पर नजर डालो। अब देखो क्या होता है। अच्छा, तो तुम इस तरह इस बिल्ली को चला रहे थे। ये एनिमल पपेट मशीन कित्रेत्सु साइसामा की एक और इन्वेंशन है कोरोसुके। एंशिएंट पीरियड में थिएटर्स में बंदरों का खेल दिखाया जाता था, पर बंदर किसी की बात नहीं मानते थे। ऑर्गेनाइजर्स ने कित्रेत्सु साइसामा को इस समस्या को सुलझाने के लिए बुलाया और उसके बाद खोज हुई एनिमल पपेट मशीन की।
इंसानों और जानवरों की बॉडी दिमाग से कंट्रोल होती है। दिमाग इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे मसल्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। हमें बस करना ये होता है कि इन छोटे बीज जैसी चीजों को मसल्स में या उस हिस्से में लगाना होता है जिसे हम चलाना चाहते हैं, और फिर मशीन के इस्तेमाल से आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बोलती कैसे है। इनके मुंह में स्पीकर लगाने से ये बोलने लगते हैं, और क्योंकि इनकी आवाज जानवरों जैसी सेट की जाती है इसलिए वो इंसानों की आवाज नहीं लगती बल्कि जानवरों की ही आवाज लगती है। कैसे हो कोरोसुके, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो कमाल है, मैं भी इसे चलाकर देखता हूँ। ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। पहले तुम इसे ऑपरेट करने का सही तरीका सीखो, फिर इसे चलाओ। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, देखो इस तरह तुम इसे खड़ा कर सकते हो, इसे ऐसे चला सकते हो, और ये बटन पीछे करने के लिए है। मैं चलाकर दिखाता हूँ। इस स्क्रीन पर बिल्ली की मूवमेंट दिखाई देती है। बढ़िया। काम पूरा होने पर मशीन खुद तुम्हें बता देगी, और जब तुम इसे दोबारा ऑर्डर दोगे। मैं इसी तरह की इन्वेंशन चाहता था। अब मैं डॉल प्ले छोड़कर जानवरों का इस्तेमाल करते हुए एनिमल प्ले करूंगा और उसमें बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं बहुत सारी ट्रांसमिशन और रिसीविंग मशीन्स बना दूंगा, तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं एक नया एनिमल थिएटर बनाऊंगा जिसका नाम होगा कोरोसुके। मैं इस घर को भी उड़ाकर राख कर दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये घर ईंटों से बना है, ये नहीं उड़ेगा। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। रुक जाओ। अरे तुम्हें कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी कि ये एक नाटक है। ये तो कमाल है, मैं तो उसे सच समझा था। तुम हमेशा ऐसे सच समझते हो। तीसरी बार तुमने हमारा सेट खराब कर दिया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वो प्ले कुछ देर और देखना चाहता था। अगर कितने तो मुझे कुछ डॉल्स बनाकर दे दे तो मैं खुद को प्ले कर सकता हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है। कितने को बताता हूँ। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कितरेसु, तुम कहाँ जा रहे हो? हे, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे सॉरी, मॉम ने भी मुझे ऐसा करने से मना किया था। लगता है मैंने इसे ज्यादा ही हैरान कर दिया। जरा इस पर नजर डालो। अब देखो क्या होता है। अच्छा, तो तुम इस तरह इस बिल्ली को चला रहे थे। ये एनिमल पपेट मशीन की तेत्सु साइसामा की एक और इन्वेंशन है कोरोसुके। एंशिएंट पीरियड में थिएटर्स में बंदरों का खेल दिखाया जाता था।
पर बंदर किसी की बात नहीं मानते थे। ऑर्गेनाइजर्स ने कित्तेत्सु साइसामा को इस समस्या को सुलझाने के लिए बुलाया और उसके बाद खोज हुई एनिमल पपेट मशीन की। इंसानों और जानवरों की बॉडी दिमाग से कंट्रोल होती है। दिमाग इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे मसल्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। हमें बस करना ये होता है कि इन छोटे बीज जैसी चीजों को मसल्स में या उस हिस्से में लगाना होता है जिसे हम चलाना चाहते हैं, और फिर मशीन के इस्तेमाल से आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बोलती कैसे है। इनके मुंह में स्पीकर लगाने से ये बोलने लगते हैं, और क्योंकि इनकी आवाज जानवरों जैसी सेट की जाती है इसलिए वो इंसानों की आवाज नहीं लगती बल्कि जानवरों की ही आवाज लगती है। कैसे हो कोरोसुके? क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो कमाल है, मैं भी इसे चलाकर देखता हूँ। ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। पहले तुम इसे ऑपरेट करने का सही तरीका सीखो, फिर इसे चलाओ। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, देखो इस तरह तुम इसे खड़ा कर सकते हो, इसे ऐसे चला सकते हो, और ये बटन पीछे करने के लिए है। मैं चलाकर दिखाता हूँ। इस स्क्रीन पर बिल्ली की मूवमेंट दिखाई देती है। बढ़िया। काम पूरा होने पर मशीन खुद तुम्हें बता देगी, और जब तुम इसे दोबारा ऑर्डर दोगे। मैं इसी तरह की इन्वेंशन चाहता था। अब मैं डॉल प्ले छोड़कर जानवरों का इस्तेमाल करते हुए एनिमल प्ले करूंगा और उसमें बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं बहुत सारी ट्रांसमिशन और रिसीविंग मशीन्स बना दूंगा, तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं एक नया एनिमल थिएटर बनाऊंगा जिसका नाम होगा कोरोसुके। मैं इस घर को उड़ा कर रॉक कर दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये घर ही से बना है, ये नहीं उड़ेगा। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे तुम्हें कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी कि ये एक नाटक है। ये तो कमाल है, मैं तो इसे सच समझा था। तुम हमेशा इसे सच समझते हो। तीसरी बार तुमने हमारा सेट खराब कर दिया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वो प्ले कुछ देर और देखना चाहता था। अगर तुम ब्रेक से मुझे कुछ डॉल्स बना कर देगी तो मैं खुद का प्ले कर सकता हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है। ब्रेक से बताता हूँ। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे सॉरी, मम्मी ने मुझे ऐसा करने से मना किया था। लगता है मैंने इसे ज्यादा ही हैरान कर दिया। जरा इस पर नजर डालो। अब देखो क्या होता है। अच्छा, तो तुम इस दौरान बिल्ली को चला रहे थे। ये एनिमल पपेट मशीन कित्तेत्सु साइसामा की एक और इन्वेंशन है कोरोसुके। एंशिएंट पीरियड में थिएटर्स में बंदरों का खेल दिखाया जाता था, पर बंदर किसी की बात नहीं मानते थे। ऑर्गेनाइजर्स ने कित्तेत्सु साइसामा को इस समस्या को सुलझाने के लिए बुलाया और उसके बाद खोज हुई एनिमल पपेट मशीन की। इंसानों और जानवरों की बॉडी दिमाग से कंट्रोल होती है। दिमाग इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे मसल्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं।
हमें बस करना ये होता है कि इन छोटे बीज जैसी चीजों को मसल्स में या उस हिस्से में लगाना होता है जिसे हम चलाना चाहते हैं, और फिर मशीन के इस्तेमाल से आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बोलती कैसे है। इनके मुंह में स्पीकर लगाने से ये बोलने लगते हैं, और क्योंकि इनकी आवाज जानवरों जैसी सेट की जाती है, इसलिए वो इंसानों की आवाज नहीं लगती बल्कि जानवरों की आवाज लगती है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो कमाल है, मैं भी से चला कर देता हूँ। ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। पहले तुम इसे ऑपरेट करने का सही तरीका सीखो, फिर इसे चला। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, देखो इस तरह तुम इसे खड़ा कर सकते हो, इसे ऐसे चला सकते हो, और ये बटन पीछे करने के लिए है। मैं चला कर दिखाता हूँ। इस स्क्रीन पर बिल्ली की मूवमेंट दिखाई देती है। बढ़िया, काम पूरा होने पर मशीन खुद तुम्हें बता देगी, और जब तुम इसे दोबारा ऑर्डर दोगे। मैं इसी तरह की टेंशन चाहता था। अब मैं डॉल से छोड़कर जानवरों का इस्तेमाल करते हुए एनिमे प्ले करूंगा, और इसमें बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं बहुत सारी ट्रांसमिशन और रिसीविंग मशीन बना दूंगा, तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं एनिमल क्रिएटर बनाऊंगा, जिसका नाम होगा कोरोसुके।